Assalamualaikum everybody, and welcome back to my channel. I hope you're all doing really good. आज जो है I'll be showing you guys how to make spaghetti. Spaghetti जो है, this is something very famous in my house. Every single one of us loves spaghetti. So today I'm going to be making spaghetti, and I thought of sharing the video with you guys because I like cooking and I like making videos, make them together, and it's a perfect piece of cake. So let's get started and let me show you guys how to make spaghetti that my family loves. Let's go. Okay guys, so right now I'm going to start by telling you guys what the ingredients are for this spaghetti. This spaghetti, you can kind of call it a chow mein, but it's not exactly a chow mein because the way I'm going to make the things and the seasonings and the flavors I'm going to add to it, it's not exactly what you put in a chow mein, but you can kind of call it a chow mein if you want. So let me get with what I'll be using for the ingredients. Over here I have around 3 to 4 capsicums, bell peppers, capsicums, and my family may say, my sister and my brother, they're not a very big fan of capsicums. I really like capsicums, so I'm going to put capsicums into this, but you can like vary the amount you're gonna add. You can put less, you can put more, you can literally not even put in it, but this adds to the flavor, so yeah. Then I have a whole garlic, around, you can say 4, 6, 8, 10, around 12 to 14 cloves of garlic. Our family really likes garlic, so I have a garlic. I have almost 1 large sized onion, and I've soaked it in some salt water right now because I naturally have a little bit sensitive eyes, but when it comes to onions I just can't take it if it's a little too strong. So just for the ease, I've soaked it. It's in the soaking right now. This is it. I used 1 small and I had half of it beforehand, so I just add them. So this is almost like a large onion. That's what we're gonna need. We need, again, all the ingredients I'm telling, this is up to you how much you want to add. I have almost 2 carrots. I probably might only end up using 1 because I'm not a very big fan of carrots, but in this it tastes good, so thoda sa dal lenge. And then I have around a cup of cabbage. I've just taken the layers off, washed it, and kept that there. And then I have almost half a kg of meat. This is chicken that I'll be using, but I'm going to cut this into pieces, so I might not need this much either. And this is all for a packet of spaghetti. This is literally just 1 packet of spaghetti that I'll be using, and you can use any type of spaghetti. You can use egg noodles if you want as well. You can literally just use spaghetti like I am using over here, or whatever. You can even make this with fettuccines if you want as well, or elbow pasta, or shell pasta, whatever you want. But this is what I'll be using because we all really like spaghetti. So for the seasoning and stuff I'll tell you guys later, but right now we're going to start by prepping. And for prep, what we're going to do is first cut all our vegetables. So let's get started. We're going to start with the vegetables first, and then we're going to move on to the meat. So let's start with our carrots and stuff. Let me bring my bigger knife. So what I have here are some cabbage leaves. What am I saying? I have some cabbage that I've just opened up all the layers, and what I'm going to do is I'm going to stack them on top of each other like so that cutting it gets easy. Now we're going to julienne cut all our vegetables. For those who don't know what julienne cut is, it's literally just cutting them lengthwise into thin strips. So let's get started. The thickness of this is again all up to you. If
if you want them very thick, very thin, but I'm just going for almost around this much thick, if you can see. I don't know if you can see, but almost this much thick ones, because these are going to, you know, shrink a little bit in a way, you can say, once they're cooked. So we have our cabbage all cut up. Next I'm going to start with the carrots. I've already taken the skin off of the carrot, cleaned it, washed it, and I'm going to cut it down the middle. And then what you're going to do is now you're going to cut thin slices like so. Right? And then cut it again lengthwise, but we're going to cut this shorter because it's quite long. So I ended up not using the whole carrot because there was quite a lot, so this much I've used. It was a little less than a whole. You can say I just left this much, little less than half. Next we're gonna move on to the capsicums. For the capsicum, what you're gonna do is first remove the top and the bottom. Right, and then you're going to open the hole. Please be careful not to cut yourself while you're doing this, because you can easily cut because पीछे से छुरी निकल रही होती है. So please be very careful. Take the core out, throw the remaining into a bin, and now you're going to literally cut this open like so. Right? I'm going to show you how to do one and then I'll do the rest. Showing it to you, this white part and a little bit of these that जो ऊपर उठी हुई होती हैं चीजें ना, उसको हम साफ करेंगे, because julienne में हमें इसकी नहीं ज़रूरत होती. See the comparison between the one that I have done and the one that has the white. Okay, so this is but basically what we want to remove. And then now we're going to go this way and we're going to cut in slices like so. जैसे आप पिज़्ज़ास के ऊपर डालते हैं उस तरह काट लें. अगर आपको मोटे चाहिए आप मोटे काट लें, अगर आपको इससे ज़्यादा पतले चाहिए आप इससे ज़्यादा पतले काट लें, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए you can like literally not put any in this as well. But I prefer the taste of capsicum. I really like it. तो मैं तो डाल रही हूँ और मेरे siblings को भी खाना पड़ेगा. Again, I'm going to I think this much
much should be enough because my siblings don't prefer to eat capsicums, so I won't do more. So this is 2 capsicums, almost 1 carrot and a little less than a quarter of a big cabbage. तो हमारी ये वेरी वेजिटेबल्स अच्छी सी जूलियन कट हो गई हैं। अब जो है मैं अपना गार्लिक काटूंगी, और गार्लिक का कोई ऐसा वो है नहीं कि आप इसको किस तरह काटें या क्या करें, मैं बस अपनी लाइकिंग के हिसाब से बस उसको काट दूंगी। है गार्लिक, बस इसमें इनको फाइन होने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर फाइन चाहते हैं तो आप फाइन कर सकते हैं। हम लोगों को जो है गार्लिक, जैसे मैंने पहले बताया, बहुत पसंद है, तो हम लोगों ने जो है ज़्यादा अमाउंट रखी है, लेकिन यू यूज़ एज मच एज यू वांट। अच्छा, अब जो है मैं अपने अनियंस को सॉल्ट वाटर से निकाल कर यहाँ रख रही हूँ, और अब इनको भी जो है ना हम, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब आई डोंट नो अगर आप देख पाएंगे कि नहीं, अनियंस के ऊपर ना खुद की अपनी लाइंस बनी होती। मैं उन लाइंस के साथ साथ उस डायरेक्शन में इनको काटूंगी ताकि वो भी इन अ वे जूलियन कट जाए। इनको भी बहुत ज़्यादा थिक या थिन, बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं करने की ज़रूरत, लेकिन थिक प्लीज़ ना रखें। ऑलमोस्ट देखें इतना है, देखिए इतनी थिकनेस के जो हैं वो हो जाएं, अगर आप देख लें तो बेस्ट है। प्याज जो है वो अभी भी स्ट्रॉन्ग हैं और मुझे अभी भी आंखों में आ रहा है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक दैट सॉल्ट वाटर अगेन एंड पुट दीज इन। बस अब आपने अपने हाथों से ना इनको लेयर्स को तोड़ लेना है थोड़ा थोड़ा करके। अब हम चलते हैं अपने मीट की तरफ। अब मेरे पास घर पर ना ये जिस तरह हांडी में आप मीट पीसेस यूज़ करते हैं ना, उस तरह के ये कटे हुए पीसेस थे, तो आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ दैट। मगर मुझे वैसे भी इनको छोटा चाहिए था, थिन इस तरह के पीसेस, तो बस इस तरह के मैं इनके पीसेस काट लूँगी। और मैंने एक बहुत बड़ा ब्लेंडर कर दिया। मैंने ग्लव्स नहीं पहने, मुझे कच्चा मीट से ना कुछ होता है, तो कोई बात नहीं, हम अभी ग्लव्स पहन लेंगे। 1/4 kg मैंने मीट यूज़ किया होगा, लेकिन अब हमारी कटिंग का और वो सारा काम ख़त्म हो चुका हुआ है, और अब जो है वी विल मूव ऑन टू द कुकिंग। तो मैं ज़रा चीज़ें समेट लूँ। ओके गाइस, तो हाथ धोकर मैं आ गई थी बिकॉज़ कच्चे मीट से मैंने काम किया था, तो हाथ धो लिए हैं मैंने। ग्लव्स दोबारा पहन लिए बिकॉज़ अब हम इस मीट को सीजन करने लगे हैं। अच्छा, एनीवेज, अब मेरे पास इतना ये सारा मीट है। आई शुड बेसिकली यूज़ अ प्लेट रादर देन अ बोल। प्लेट ले ली है, इसके अंदर मैं जो हूँ, दैट स्कैर्ड मी, खिड़की हवा से हिली एंड आई थॉट बाहर कोई था। आफ्टर माई सिस्टर्स वंडरफुल स्टोरी ऑफ हाउ a whole stampede of animals came, that scared me because I thought बाहर कोई एनिमल है। मुझे चॉपस्टिक से काम करने का बहुत शौक है, तो अगर आपको इरिटेट ये चीज़ लगती है कि मैं सिंपल कांटे से क्यों नहीं कर रही, तो प्लीज़ आप माइंड ना करें, क्योंकि मुझे बहुत शौक है चॉपस्टिक्स को इस्तेमाल करने का। मैं लिटरली हर चीज़ में चॉपस्टिक्स इस्तेमाल करती हूँ अब तो, जब मुझे मौका मिले यूज़ चॉपस्टिक्स। ये हमारे पास हो गया। अब मैं इसके अंदर अपना मीट डालूंगी। अगर हमें और अंडे की ज़रूरत पड़े तो हम और अंडा डाल लेंगे, लेकिन अब मैं ज़रा इसको मिक्स कर लूँगी। मैं तकरीबन इसमें डालूँगी
हाफ टी स्पून ऑफ सॉल्ट, ऑलमोस्ट a teaspoon ऑफ सॉल्ट, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बिकॉज हम लोग बाकी चीज़ों में भी करेंगे। ऑलमोस्ट या टीस्पून ऑफ सॉल्ट मैं इसमें डाल रही हूँ। और फिर जो है अब इसमें हम पेपर डालेंगे, मगर मेरे पास पेपर क्रशर है, ठीक है, और मेरा हाथ इस पर अंडा लगा हुआ है, तो I do not know how we're going to make this work. इसके अंदर तकरीबन you can say a little more 2 teaspoons You're of welcome. pepper. Thank you. Around 2 teaspoons of मैंने पेपर डाल लिया है और अब जो है मैं इसको मिक्स करती हूँ। अच्छा, तो हम अच्छा सा मिक्स करेंगे ताकि सारी सीजनिंग्स और सब कुछ जो है वो मिक्स हो जाए। अब इसके ऊपर जो है मैंने डाला है थोड़ा सा फ्लावर, मैदा इस पर तब तक डालेंगे तकरीबन, मैंने अपने पास जो है ना मैक्सिमम जो है ना आपको इसमें अगर डलेगा लाइक बहुत ज़्यादा डले तो आप इसके अंदर डालेंगे तकरीबन हाफ अ कप फ्लावर, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं ज़रूरत आपको, तकरीबन हाफ का भी हाफ आप डालें तो बेस्ट होगा। लेकिन इस तरह की इसकी कोटिंग अच्छी सी इस पर ना मैदे की भी हो जाए, क्योंकि हम इसको अभी फ्राई करेंगे तो ये थोड़ी सी ना क्रिस्पी से मीट आपकी बन जाए। थोड़ा सा और मैदा तक, हाँ देखें मैंने बल्कि हाफ से भी कम डाला है इसके अंदर मैदा। इस तरह जो है हम थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयल की भी नहीं हमें ज़रूरत, इतनी कि बस ये इस पर कवर नीचे से हो जाए। ये है तकरीबन 1 कप ऑयल का, लेकिन से 1 कप ऑयल या 1 कप से थोड़ा सा कम। अगेन शैलो फ्राई करनी है चिकन को, हम लोगों ने चूल्हा चला लिया है, हम लोगों ने ऑयल गर्म होने का वेट करेंगे हम लोग, फिर उसके अंदर एक एक करके हम अपनी चिकन पकाएंगे। तो अब मैं एक एक कर कर जो है अपना पीस ऑफ मीट जो हूँ इसमें डाल लूँगी। हल्का सा लाइट ब्राउन कलर जो होता है, और अब आपका ये मीट जो है पक गया है तो मैं इसको एक एक कर कर निकाल लेती हूँ। ओके सो गाइस, ये हमारा सारा जो मीट है वो पक चुका है, बहुत अच्छा सा इस पर कलर भी आ गया हुआ है। अब जो है हम वेजिटेबल्स की तरफ चलेंगे। सोक अप, स्क्वीज आउट ऑल द वाटर फ्रॉम देम। अब we're gonna cook this for some time। जब ये थोड़े से ओपेक होना शुरू, ट्रांसलूसेंट होना शुरू हो जाए, फिर जो है हम इसके अंदर डालेंगे अपनी गार्लिक। अच्छा, इस स्टेज पर जब वो इस तरह के अनियंस हो जाएं तो फिर अब मैं इसके अंदर जो हूँ आई एम गोइंग टू ऐड आवर कट गार्लिक। सारा गार्लिक ऐड कर लेंगे और अब इसको पका लें। You're gonna cook this now, जब तक कि गार्लिक का जो रॉ फ्लेवर आप कह लें होता है ना वो ख़त्म हो जाए। That's probably around 3 minutes, 2-3 minutes। अच्छा, आप देख सकते हैं आपके हमारे प्याज जो हैं वो ब्राउन होना शुरू हो गए हुए हैं। इस स्टेज पर जो है मैं अब अपने डालूँगी कैबेज। आई डोंट थिंक मैं इतनी सारी कैबेज डालूँगी, प्रॉबेबली इससे थोड़ा सा कम करूँगी। You don't want there to be too many vegetables for just one packet of cabbage। तो मैंने इतनी कैबेज डालना छोड़ दी है। You can use this for anything else। तो अब जो है ना, ये हमारी जो कैबेज है ना वो ऑलमोस्ट ट्रांसलूसेंट हो गई है। अब इस स्टेज पर जो है मैं अपने कैरेट्स डालूँगी। अगेन आई एम गोइंग टू सी अगर मुझे इतने सारे कैरेट्स की ज़रूरत है कि नहीं। कैरेट्स तो इसके अंदर सारे डाल सकते हैं क्योंकि मेरे सिबलिंग्स को कैरेट्स बहुत पसंद है। आई पर्सनली डोंट लाइक कैरेट्स दैट मच। रॉ फॉर्म में तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं खाए जाते, इस फॉर्म में भी नॉट अ बिग फैन, लेकिन फिर भी खा रही हूँ क्योंकि सिबलिंग्स को पसंद हैं। सिबलिंग्स मेरे लिए कैप्सिकम खाएंगे, मैं उनके लिए कैरेट्स खाऊंगी।
बस इसको 2-3 मिनट पकाऊंगी। फिर इसके बाद जो है मैं इसके अंदर कैप्सिकम डाल दूँगी अपनी। अच्छा, अब मैंने इसके अंदर जो है अपनी शिमला मिर्च भी डाल ली है, कैप्सिकम, और बस 1 मिनट और पकाऊंगी। और फिर हम इसके अंदर अपनी सीजनिंग्स और चीज़ें डालना शुरू कर देंगे। सीजनिंग के लिए आप कुछ भी डाल सकते हैं। अगेन आपका पास्ता एक ऐसी चीज़ है, स्पेगेटी एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आप जो चाहें ना आप उसका फ्लेवर वैसा बना लेते हैं। ठीक है, अब हम सीजनिंग्स में क्या क्या कुछ डालेंगे। सबसे पहले तो है आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद सम सोया सॉस। और ये आपने याद रखना है कि सोया सॉस जो होता है ना, इसके अंदर इटसेल्फ सॉल्ट काफ़ी होती है, तो आपने ध्यान से डालनी है। आई एम स्टार्टिंग ऑफ विद I have put 2 tablespoons of soya sauce into this. ठीक है, अब जब सोया सॉस डाल दी ना तो मैं फ़िलहाल इसके अंदर वो नहीं डाल रही, मैं सॉल्ट नहीं डालूंगी। मैं इसके अंदर चिली सॉस डाल रही हूँ। आप केचप डाल लें, मेरे पास चिली सॉस पड़ी हुई थी, चिली सॉस डाल रही हूँ। तकरीबन फ़िलहाल के लिए 4 टेबलस्पून चिली सॉस के डाले हैं। बिकॉज आपने ये भी माइंडफुल रहना है कि अभी इसके अंदर एक पूरा पैकेट नूडल्स का भी जाना है, तो उसकी सीजनिंग उसी के हिसाब से आप लोग करें। थोड़ा सा ज़्यादा रखें इसके अंदर, ताकि जब मिक्स करें ना तो वो कम ना लगे। ठीक है, दिस ऑलरेडी लुक्स रियली डिलिशियस। थोड़ा सा डाल रही हूँ ज़ीरा, बिकॉज ज़ीरा मज़े का फ्लेवर होता है। आप इसके अंदर थोड़ा सा पाउडर डाल सकते हैं, साबुत डाल सकते हैं, भुना हुआ डाल सकते हैं। मैं सिंपल डाल रही हूँ। थोड़ी सी इसके अंदर मैं कलवंजी डालूँगी। अगेन कलवंजी फॉर द सेक ऑफ जस्ट बीइंग कलवंजी वो है जिसका मैंने पिछली वीडियो में भी डाला था। इसका ऐसा कोई खास फ्लेवर नहीं आएगा इसमें। थोड़ा सा अब आप इसको मिक्स कर लें। अच्छा, अब चिली सॉस जो होती है ना, ये थोड़ी सी मीठी होगी ऑब्वियसली, तो उसका मिठास को काउंटर अटैक करने के लिए इसमें सोया सॉस भी है, लेकिन मैं इसके अंदर थोड़ी सी स्पाइस भी डालूँगी। स्पाइस में मैं क्या करूँगी, मैं ऑलमोस्ट a quarter of a teaspoon जो हूँ ना, मैं इसके अंदर रेड चिली पाउडर डालूँगी। फिलहाल के लिए अगेन मैं इसके अंदर 2 और चम्मच जो हूँ ना वो डालूँगी चिली सॉस के, बिकॉज मुझे थोड़ा सा इसको सॉसी चाहिए है, ताकि जब नूडल्स भी जाए तो एक अच्छी सी कोटिंग ऊपर लग जाए। इसको अभी आपने यूँ पकाया, थोड़ा सा किया। अब मैं इस स्टेज पर जो हूँ ना, इसके अंदर आप डाल दूँगी अपने चिकन जो हमने बनाई थी, ताकि चिकन में भी फ्लेवर चला जाए। अब आपने ये भी माइंडफुल रहना है कि चिकन इटसेल्फ में हम लोगों ने सॉल्ट डाला था, तो ये ना हो कि वो ज़्यादा सॉल्टी हो जाए, तो इसलिए ध्यान से थोड़ा सा आपने इसमें सीजनिंग करनी है। मैं इसमें खुशबू से मुझे पता चल रहा है कि इसके अंदर जो है वो भी शुगरी, इसमें भी वो खटास का या वो जो चिली सॉस में मिठास का एलिमेंट होता है ना, वो भी है। तो मैं इसमें जो हूँ थोड़ी सी वो डाल दूँगी अब विनेगर, और विनेगर मैं डालूँगी इसके अंदर आप ऑलमोस्ट कह लें हाफ a टेबलस्पून या ऑलमोस्ट a टेबलस्पून। हाँ, बाकी मैं ऑलमोस्ट a टेबलस्पून इसके अंदर जो है वो डाल रही हूँ सिरका विनेगर। मैंने सिंपल वाइट विनेगर लिया है। 2 टेबलस्पून पानी के डालूँगी।
बल्कि नहीं 4 डालते हैं हम। ऊपर से ज़रा सा पेपर भी डालेंगे हम। पेपर डाल रही हूँ ½ टीस्पून, बहुत ज़्यादा नहीं। ओके गाइस, तो ये जो है अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ, इसको और नहीं पकाऊंगी। ये हमारी फिलिंग जो पास्ता के अंदर डलेगा वो है कम्प्लीटली डन। पानी इस तरह अच्छा सा बॉयल होना चाहिए जब हम लोग अपने नूडल्स डालेंगे। तो मैं ज़रा आंच थोड़ी सी हल्की कर रही हूँ इस स्टेज पर, क्योंकि मेरा हाथ जल जाएगा फिर से। और इसके अंदर अब डाल देंगे हम 1 पैकेट नूडल्स। इनको थोड़ा सा यूँ स्प्रेड करेंगे। अब क्योंकि पानी बहुत अच्छा सा बॉयल है, अब आप देख लेंगे खुद ब खुद ही नीचे जो है ना स्लाइड डाउन होते जा रहे हैं। इनको थोड़ा थोड़ा स्प्रेड करें एंड वाला। अब नूडल्स को जो है इसमें डाल दिया है, थोड़ा सा ऑयल भी एक्स्ट्रा डाल दिया था जस्ट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्टिकिंग, क्योंकि पानी बहुत अच्छा गर्म हुआ हुआ है। वी आर गोइंग टू लीव द नूडल्स इनसाइड फॉर अराउंड 10 मिनट्स। गर्म हो गया है, नूडल्स मेरे सारे धुल चुके हुए हैं, तो मैं इनको थोड़ा थोड़ा कर जो है ना अब अपने नूडल्स को डालूँगी। एंड यू डोंट वांट कि अब आपके नूडल्स जो हैं वो टूटें, बिकॉज टूटे हुए नूडल्स किसी को भी खाना बनने का लगता है। और अब मैं इनको बस मिक्स कर दूँगी, बल्कि आई थिंक मुझे सारे नूडल्स डाल देने चाहिए ताकि एक ज़्यादा मिक्स ना हो। अपना स्पैचुला भी ले आऊँगी मैं और अब मैं इनको सारे को मिक्स कर लूँगी। दिस इज़ द फाइनल रिज़ल्ट। अभी और भी रहता है, मैंने इसमें सर्विंग डिश में इतने ज़्यादा नहीं डाले, मगर दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट of the noodles, the spaghetti. So if you guys enjoyed this video, make sure you like it, share it with your friends and family so they can try this recipe out as well. Comment down below what next you want me to make, and please do subscribe to my channel and turn the post notifications on so that you guys get notified every time I upload a video. This is it for today. This is Rana Masad signing off. Khuda Hafiz.